Hello students and welcome to today's biology class. In the previous class we were discussing about the different kinds of sex determinations of living organisms. We have seen into the chromosomal sex determination where we have observed that the allosomes or the sex chromosomes are responsible for the determination of a sex of the individual. So ये चीज हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग देखे थे कि दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम्स जो हमारे फिनोटिपिक फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक पेयर क्रोमोसोम ऐसा होता है जो हमारे सेक्स को डिटरमाइन करता है। मतलब आप मेल होंगे कि फीमेल होंगे वो डिटरमाइन करता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, that is the XX chromosome or XY chromosome. If the individual is having XX chromosome, then that is female, and if the individual is having XY chromosome, then he is a male. But one thing that we need to remember is ये जो X और Y chromosome होते हैं, they are responsible for determination of sex of an individual. That is true. लेकिन इनमें क्या होता है कि there are also certain genes which control other metabolic functions or other characters as well. तो X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम में कुछ जीन्स होते हैं जो हमारे कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ पैटर्न बाय व्हिच दिस जीन्स आर ट्रांसमिटेड। ये जो जीन्स होते हैं X और Y क्रोमोसोम में, उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि किस तरह से वो लोग इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे में। सो दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास, व्हिच इज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। नाउ व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड हु proposed the theory? Let us see. So the first point, the sex-linked inheritance theory was given by, or it was discovered by T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan, in Drosophila melanogaster in 1910. 1910 में Drosophila melanogaster, that is fruit fly, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस किए थे. You'll find these small fly-like organisms hovering around the fruits. So that is why they have got the name की the fruit fly Drosophila melanogaster. This theory also was experimentally supported later by Dunn and Dobzhansky in 1958. तो जितने भी हमारे पास साइंटिफिक थ्योरीज होते हैं उनको एक प्रूफ चाहिए होता है. We need a proof, an experimental or a scientific proof. And that was given by Dunn and Dobzhansky in the year 1958. Now, as I have been telling you कि X or Y chromosome, though they are responsible for determination of sex, but they also contain certain genes. उनमें कुछ genes भी होते हैं जो हमारे metabolic function को control करते हैं. The genes present on X chromosome are called as X-linked or sex-linked genes. Okay, whereas the genes present on Y chromosome are called holendric genes. तो बच्चों ये दोनों वर्ड थोड़ा याद रख लो because this is very much important here. The genes present on X chromosome are called as X-linked or sex-linked genes, and the genes present on Y chromosome are called as holendric genes. Now, the genes present on Y chromosome, which are holendric genes, they will only be transmitted from male individual to male individual. मतलब father to son to grandson, so on. तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन सिर्फ मेल इंडिविजुअल में जाएगा because Y chromosome is only present in the males, it is not present in the females. But with the X chromosome, the story is a little different. X chromosome में क्या होता है कि ये आपका मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है. Female will have 2 X chromosome, whereas male will have only 1 X chromosome, but it will possess X chromosome, right? तो जब ये कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, जब कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द X chromosome, when they are transmitted from one generation to another, they can be in males, they can also be in case of females. वो females में भी हो सकते हैं, males में भी हो सकते हैं, right? So the transmission of this kind of character is called as sex-linked inheritance. और इनको सेक्स लिंक जीन भी बोला जाता है. सेक्स लिंक जीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों सेक्स में होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी. लेकिन वाई क्रोमोसोम को हम लोग सेक्स लिंक्ड नहीं बोल सकते क्योंकि वो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल सेक्स के लिए होता है, दैट इज द मेल इंडिविजुअल. ओके, सॉरी. सो ये जो आपका क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्स एंड वाई, उनके जो जीन्स होते हैं उनके इनहेरिटेंस पैटर्न पे ही आपका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, स्पेसिफिकली ऑन द एक्स क्रोमोसोम. So the inheritance of genes present on the X chromosome, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ X क्रोमोसोम में जो जीन्स है उनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है उसको बोला जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ओके, so that is the topic of discussion that we are having.
Now, how actually Morgan came with this idea? Morgan was actually working on Drosophila melanogaster. तो वो एक colony of Drosophila melanogaster को observe कर रहे थे and suddenly found that in the red eye colony, normally Drosophila का eye color जो होता है वो red eye होता है. That is a wild gene, मतलब naturally जो exist करता है. So all of a sudden he found there was a mutant white eye male within that population. Now what Morgan thought was it may be due to mutation. तो म्यूटेशन तो हम लोग जानते हैं, इट इज अ सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जीन सीक्वेंस व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर. तो अगर आपके जीन में कुछ सडन चेंज आ गया, कोई न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स चेंज हो गए, तो उसके चलते कुछ नए कैरेक्टर्स अपीयर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन. सो मॉर्गन आल्सो थॉट दैट इट माइट बी ड्यू टू म्यूटेशन. तो म्यूटेशन के चलते एक व्हाइट आई मेल अपीयर किया उस पॉपुलेशन में. Now what Morgan did was he took this white eye male and he crossed it. He crossed it with a red eye normal female and he observed the subsequent generations. तो उन्होंने इस white eye male को लिया और उसको उन्होंने एक रेड आई फीमेल जो कि एक नॉर्मल आपका आई कलर का फीमेल है उसके साथ वो क्रॉस कर दिया फॉर मेनी जनरेशंस एंड देन ही स्टार्टेड टू ऑब्जर्व सिमिलर टू व्हाट मेंडल हैड डन. मेंडल जैसे एक टॉल प्लांट लिए, एक ड्वार्फ प्लांट लिया और उसको सक्सेसिव जनरेशन तक स्टडी किए, वैसे ही उन्होंने भी किया. Now there was a specific pattern that he observed in the inheritance of this eye color gene. तो ये eye color gene है उसमें एक specific pattern उभर के आया. So what was it? Let us see what was the kind of cross that Morgan did and what he found. Now this is the cross. Okay. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ. Here I'll show you. यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम्स को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए आप लोग. ना ये जो थोड़ा बेंट है, a hook like chromosome, that is Y chromosome. Okay, ये चीज आप लोग याद रखिए. ये जो हुक शेप का क्रोमोसोम है, this one, this is a Y chromosome. Y chromosome को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, whereas X chromosome is represented in the form of bar. एक लंबा सा बार लाइक स्ट्रक्चर अगर है तो वो X क्रोमोसोम है. Okay, so here you will find कि there was a Y chromosome, X chromosome. That means it is a male individual, but the male was white eye. It was not the red eye. तो यही वो म्यूटेंट मेल है जिसको लेके मॉर्गन ने क्रॉस किया था. उसको किसके साथ क्रॉस किया? He crossed it with a normal red eye female. फीमेल जो थी वो रेड आई थी, नॉर्मल थी. ठीक है ना. यहाँ पे क्रोमोसोम थोड़ा आइडेंटिफाई कर लीजिए आप लोग. ये येलो कलर का बैंड क्रोमोसोम जो है ये वाई है. व्हाइट कलर का रॉड लाइक जो है इट इज द एक्स क्रोमोसोम विथ द व्हाइट आई जीन और द व्हाइट आई एलील. तो व्हाइट कलर का क्रोमोसोम जो है इसमें वो जीन है. ठीक है. Whereas रेड कलर का जो एक्स क्रोमोसोम है, ये जो बार लाइक हैं, ये नॉर्मल जीन वाले हैं, ये रेड आई कलर के जीन है, तो इसीलिए इसको रेड कलर से डेजिग्नेट किया गया और इसको व्हाइट कलर से. ठीक है. ये जो बेंट है वो वाई क्रोमोसोम है. जो व्हाइट कलर का रॉड लाइक है दैट इज एक्स क्रोमोसोम विथ व्हाइट आई जीन. और ये रेड कलर का जो आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स है वो एक्स क्रोमोसोम विथ रेड आई, नॉर्मल रेड आई जीन्स. ठीक है. तो जब इसको उन्होंने क्रॉस किया F1 जनरेशन, ही फाउंड दैट बोथ मेल एंड फीमेल वेयर रेड आई. ठीक है, दोनों का रेड आई था. हियर ही एक्चुअली सॉ कि जो मेल है ही वाज नॉट हैविंग दैट स्पेसिफिक जीन एनीमोर इन दिस जनरेशन, F1 जनरेशन. वो कैसे होता है हम लोग डिस्कस करेंगे. लाइक अगर इसको हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, देखिए ये जो Y है, Y क्रोमोसोम हियर एंड ए रेड क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल. ठीक है. So that is how this combination came into existence. मतलब जो next generation का मेल था, Y chromosome from the white eye male and X chromosome, the normal red eye female का X chromosome उसमें आया था. तो as a result इसमें white eye का जीन था ही नहीं in the F1 male. But F1 female में क्या था? F1 female में the X chromosome containing the white eye gene and the X chromosome from the normal female with red eye. ये दोनों एक साथ आए. ये भी एक XX कॉम्बिनेशन में था, लेकिन दोनों X क्रोमोसोम्स में एलील अलग अलग थे. एक में रेड आई एलील था और दूसरे में व्हाइट आई एलील. ओके. बट दिस ऑर्गेनिज्म इज नॉट शोइंग द कैरेक्टर. इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये जो व्हाइट आई जीन है ये रेसेसिव है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, the character which is not able to express itself in a heterozygous condition is recessive. ठीक है. now ये जो individuals हैं इनको carriers बोला जाता है. these individuals are called as carriers. I'll just write it here. Carrier.
मतलब द फीमेल हु कैरी द जीन, मतलब इसमें देखिए जीन है, व्हाइट आई जीन है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज कैरियर्स. कैरियर्स, दे कैरी द जीन बट डू नॉट एक्सप्रेस द कैरेक्टर, राइट. अब जब F2 जनरेशन में आ गया, तो F2 जनरेशन में देखिए अभी 4 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे. Y क्रोमोसोम फ्रॉम द मेल and the white eye X chromosome from the female. This is one combination. Okay. The next combination will be Y chromosome from the male and the red eye X chromosome from the female. This is another combination. Now normal red eye X chromosome from the male and white eye X chromosome from the female. This is another combination. And the last combination will be normal red eye X chromosome from the male and normal red eye X chromosome from the female. So this will be the last combination having 2 X chromosomes female which is having red eye genes only. तो ये जो कॉम्बिनेशन आया, इसमें से आप पहला कॉम्बिनेशन देखिए, Y क्रोमोसोम विद X क्रोमोसोम हैविंग द जीन. तो यहाँ पे मेल जो है वो व्हाइट आई हो जा रहा है. द मेल इज व्हाइट आई, इट्स नॉट रेड आई. रीजन, Y क्रोमोसोम के अगेंस्ट में कौन सा क्रोमोसोम है? ये है आपका व्हाइट आई क्रोमोसोम, व्हाइट आई जीन वाला क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम. So, and we know कि recessive genes are only expressed in homozygous recessive condition. तो यहाँ पे X क्रोमोसोम में जो जीन है, इसके करस्पॉन्डिंग में Y में कोई और जीन नहीं है. Okay, remember this. For every gene in X chromosome, it is not mandatory that there will be a gene in Y chromosome. तो as a result, ये जो white eye gene है, इसके करस्पॉन्डिंग में Y क्रोमोसोम में कोई जीन नहीं है, इसीलिए ये एक्सप्रेस हो रहा है. Okay, that is the reason कि this recessive character is being expressed. So this is the cross which Mendel did and he carried out for many generations. Now here he found a specific pattern. उसमें एक पैटर्न दिखाई दिया. क्या पैटर्न था वो? ये देखिए, पहले पेरेंटल जनरेशन में व्हाइट आई जीन वो था मेल इंडिविजुअल में. ओके, let's clear this all and now we can see. So this white eye gene was in the male individual. In the F1 generation, the white eye gene was in the female. In the F2 generation, the white eye gene was in male as well as female, but it was expressed in the male. ठीक है, तो पहले जनरेशन में मेल, दूसरे जनरेशन में फीमेल, तीसरे जनरेशन में मेल, नेक्स्ट जनरेशन फिर फीमेल, वैसे करके ये एक पैटर्न कंटिन्यू किया. Now this is called as criss-cross pattern of inheritance. So this is what Morgan stated कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होता है वो क्रिस-क्रॉस पैटर्न फॉलो करता है. और यहाँ पे एक चीज आप मार्क कर लीजिए कि ये जो व्हाइट आई जीन है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, कहीं पे भी वो आपको वाई क्रोमोसोम में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ओके, so this is what experiment T.H. Morgan had done. Now from this experiment he concluded that X-linked genes has certain characteristics. उसके कुछ characteristics होते हैं. क्या होते हैं उसके characteristics? The first characteristic that he described was genes on X-linked inheritance are always present on X chromosome. तो X-linked genes जितने भी होते हैं वो हमेशा X chromosome में ही होते हैं, not on Y chromosome, right? Now the second point that he mentioned, the X-linked genes are recessive in nature. हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि एक कैरियर इंडिविजुअल होता है जिसमें डोमिनेंट रेड आई जीन होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में रेसेसिव व्हाइट आई जीन होता है. मतलब ये जो एक्स लिंक जीन्स होते हैं ज्यादातर रेसेसिव ही होते हैं. ठीक है, दैट इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, दे फॉलो ए क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच वी जस्ट सॉ इन द प्रीवियस स्लाइड कि पहले जनरेशन में मेल, नेक्स्ट जनरेशन फीमेल, उसके बाद वाला जनरेशन मेल, उसके बाद वाला जनरेशन फीमेल, वैसे करके एक क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है, जिगजैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है. ठीक है, मतलब अगर एक जनरेशन में ग्रैंडफादर को है तो नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर को होगा, नेक्स्ट जनरेशन में सन को होगा, ग्रैंडसन को होगा. सो इट विल बी ए जिगजैग पैटर्न, राइट. और एक पॉइंट उन्होंने ऐड किया कि मेल्स कैन बी आइदर नॉर्मल और इफेक्टेड, व्हेयरएज फीमेल्स कैन बी आइदर नॉर्मल, इफेक्टेड और कैन एक्ट एज कैरियर. तो अगर मेल की बात करें हम लोग तो वो आइदर नॉर्मल होंगे या इफेक्टेड होंगे. मतलब normal individual will have Y chromosome and normal red eye X chromosome, but the other affected male जिसको हम लोग बोलते हैं उसका एक Y chromosome होगा और एक white eye वाला X chromosome होगा. तो दो ही कॉम्बिनेशंस हैं, there is no more combination. लेकिन फीमेल इंडिविजुअल में तीन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. फीमेल both the X chromosome can be red eye, that is normal. The second one is both the chromosomes will be white eye, both the X chromosomes will be white eye carrying X chromosome, that will be affected. वहां पे फीमेल व्हाइट आई हो जाएगी. ठीक है,
तीसरा जो कंडीशन है जो हम लोग उस स्लाइड में भी देखा, कैरियर। कैरियर मतलब एक व्हाइट आई एक्स क्रोमोसोम, एक रेड आई एक्स क्रोमोसोम, राइट? मतलब उसमें दोनों क्रोमोसोम हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, ओके? बट as because the gene is recessive, it will not be expressed. So they carry the gene, the carriers, they carry the gene, but cannot express it. So these are the four characteristics of sex-linked inheritance, which was given by T.H. Morgan. So in the next class, we'll discuss a few examples regarding the sex-linked inheritance, and we'll see how this is inherited in case of human beings. Okay. Thank you, everyone.